big welcome to our musical show today, organized by Kiki Center of Technology students. First, we will I request you all to stand for national anthem, please. In spite of tenacious planning over more than 1 month, there may be few loopholes. I hope you will kindly forgive us, as it is our first of its kind for our institute students. Let's begin our show with a prayer song, sung by our very own musical stars, Anmol, Anita, and Aarti. It all started with a meeting over phone, a phone call, where a respected principal sir, Shri K.V. Srijit, and our lovely ma'am, Putanjali, jointly agreed on a theatre production. Honorable Chief Guest of the function, Mr. Bruno Hoyer, our Operation Head, Mr. Sujoy Singhi, our beloved Ma'am Priyanjali Na, distinguished guests, invitees, special invitees, parents, dear staff members, and all the students. Very good afternoon to all of you. In this auspicious occasion, I am very proud to say that this is the first time we are hosting this type of program. Basically, our center itself is in an industrial area, and our students are also doing industrial type of works.
and always they are very busy with the daily schedules, practicals, exam preparations, machining, all other stuff. So we have never tried these type of programs. So we used to conduct sports program, annual sports program every year. But last 2 years, because of COVID and other things, we cannot able to conduct it. But this time, one plan was come to our thought. So one day, Madam was asking me, Principal Sir, actually we have a lot of unprivileged students, those who are not able to got a chance to study in a premier schools and do all these type of stuffs. So definitely we had to give them a chance to perform. So we told that, okay, we will do it. So the thing was done. Rajashree Madam was there. So we asked her, can you do it? So suddenly she told, no, because time is very less. So Madam, it has to be extended. So we told, no, it won't be extended, we have to do it. Because we don't have time. Because next month, students are having exams. Actually, the students are doing a lot of exam preparations now. In between that, they are doing theatre production also. Acting, practicing, singing, dancing, everything they are doing. So hats off to you, all the students, those who are participating and not participating. Because I have seen many days, they used to practice from 10:15 to 1 every day in the library hall where we have the space. I have seen Madam also, Rajashree Madam also joining with them and eagerly directing them, guiding them in all manner. So one day I also went to the practice room. So I was very happy. I have seen a lot of transformation in the students. You can see it on the stage. I am not spoiling by the spoilers. Because there are some special, I have seen some students, they were not talking also that time in the classrooms. But I have seen them on the stage. They were marvelous, I can tell you. So, because many people are having a lot of inherited talents. So we had to bring it out. So that is the main idea of this program. So I think you will enjoy the program. I am not going to make you boring. So I welcome all of you, all the people who are assembled here. I welcome in the name of myself and the Kiki Center for Technology and Anjali Foundation. So thank you. Enjoy the program. We will now light the lamp as part of the inauguration ceremony of our program today. And hereby we heartily welcome Mr. Bruno Buer to do the honors. Students, please accompany sir. Sujoy sir also come upon the stage. Please sir. If Dikshit sir is here, then we will proceed with our programs, and so the participants are eagerly waiting to showcase their enthusiastic dance program today. So now let's begin our show. Okay. So now our stage is set.
And now they are ready for the charismatic dancers. The stage is ready for the charismatic dancers as part of our main attraction of the day. Let's welcome all of our dancers. With big round of applause, please. Now let's put your hand together for Bawarchi Diaries. राजेंद्र त्यागी। वैसे तो कंस्ट्रक्शन का काम है अपना, पर ये सोसाइटी वालों ने RWA का अध्यक्ष चुना है हमें। तो बउआ बात ये है कि अगर शो के दौरान किसी का फ़ोन वोन बजा तो फिर देख लेना, ठीक नहीं होगा। शक्ल से जितने शरीफ लगते हैं हम, गुस्सा आ जाए तो बड़े सनी देओल टाइप हैं। तो आइए शुरू करते हैं नाटक। तो आज एक नई खाना बनाने वाली आने वाली है, उसी की प्रतीक्षा कर रहे हैं। भैया नमस्ते। भैया किसको बोले रे? हाँ भैया किसको बोले रे? त्यागी नाम है हमारा। अच्छा नाम क्या है तुम्हारा? राजकुमारी। अच्छा अच्छा, बहुत अच्छा। हम त्यागी, राजेंद्र त्यागी। तुम जी कहो। जी। अरे जी कहो। जी। अरे जी लगाओ। लगा तो रही हूँ जी। अम्मा नाम के साथ जी लगाओ। राजकुमारी जी। अरे ओ मास्टर साहब, हमारे नाम के साथ जी लगाओ रे। ओ जी त्यागी जी। अच्छा ये बताओ, घर पे कौन कौन है तुम्हारे? त्यागी जी, त्यागी जी मेरी तो वही पुरानी वाली कहानी है। छोटी बहन कुंवारी है,
छोटा भाई बीमार है, माँ बाप नहीं है। ओहो, बस करो बे, बस करो। कितना दुख है संसार में, ए भगवान, कितना दुख है। त्यागी जी, वैसे इतना दुख भी नहीं है। छोटी बहन कुंवारी है क्योंकि स्कूल में है। भाई को बस थोड़ा सा जुकाम और बुखार है। और माँ बाप यहाँ नहीं है, गांव में है। तुम्हारी ऐसी की तैसी अकेलिया कर रही हो हमारे साथ, इमोशनल कर दिया हमको। राज चौधरी, तुमको पता नहीं है हमारा गुस्सा कितना खराब है। त्यागी जी, आज से काम शुरू कर दो। हाँ, आज से काम शुरू कर दो, लेकिन कोई दिक्कत परेशानी हो तो हमारे पास मत आना। चलो निकलो, चलो चलो। हाँ तो बउआ, आओ दिखाते हैं क्या हुआ अपार्टमेंट नंबर 101 में, और हमसे मुलाकात होती रहेगी हर कहानी के बाद। चलिए, है फन। दीदी, दीदी आप ठीक हो? दीदी आपको क्या हुआ? किसने बांधा आपको ऐसे? मैंने बांधा है। इन्हें मैंने बांधा है। बहुत बोलती है। तुम कौन? मैं खाना बनाने वाली हूँ, त्यागी जी ने रखा है। तो त्यागी जी ने रखा है तुमको? उस बेवकूफ को यहाँ का प्रेसिडेंट किसने बनाया समझ ही नहीं आता। नाम क्या है? राजकुमारी। तुम्हारा नहीं, मेरा बताओ। मुझे कैसे पता भैया? यही तो बात है ना, तुम्हें मेरा नाम नहीं पता, लेकिन मैं तुम्हारे बारे में सब कुछ जानता हूँ। कौन हो, कहाँ से आई हो, क्या करती हो, मुझे तुम्हारा इंतजार था। भैया, वो आप दीदी को खोल दीजिए और खाने में क्या बनाऊं ये बता दीजिए। अरे अरे अरे, दीदी को भी खोलेंगे और खाना भी बनवाएंगे। तुम्हें पहले मैं एक अपनी कहानी सुनाता हूँ। आप कहानी दीदी को सुनाओ, मुझे यहाँ के बाद और भी घरों में जाना है भैया। अरे अरे अरे, ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। तो एक दिन मैं रास्ते से जा रहा था, भेलपुरी खा रहा था। थैंक यू। तो उस दिन मैं रास्ते से जा रहा था, भेलपुरी खा रहा था। नहीं नहीं, तुम ही कर लो, तुम ही कर लो, मैं नहीं खेल रहा हूँ। जाओ तुम ही खेलो। नहीं नहीं, मैं नहीं कर रहा। नहीं, मैंने बोला ना नहीं। मैं रास्ते से जा रहा था, भेलपुरी खा रहा था, और तभी मेरी नजर एक सब्जी मंडी पे पड़ी। मैं अंदर गया और मैंने देखा ताजे फल मुझे पुकार रहे हैं, अपनी ओर खींच रहे हैं। भैया, फल आपको बुला रहे? आपने सुना उनको? हाँ हाँ, मैं फल और सब्जी से बातें करता हूँ, तुम्हें कोई ऐतराज है? उसके बाद मैं फल खरीदने लगा, उनको परखने लगा, अपने हाथों में उनकी तपिश महसूस करने लगा। हल्की? हाँ, तुम्हें कोई ऐतराज है? और उस दिन मैं ढेर सारे फल खरीदे। मैं घर आया, सामान प्यार से टेबल पे रखा और फिर मैं जिम चला गया। पर जब मैं वापस आया तो टेबल पर बस एक ही अमरूद पड़ा था, बाकी सब गायब। वो दीदी ने फ्रीज में रख दिया होगा। अरे फ्रीज में नहीं, हम तो सारा सामान कूलर में रखते हैं। नहीं नहीं, इस औरत ने सारा सामान चुरा लिया। इसका मुआवजा इसे अपनी जान दे के चुकाना होगा। नहीं भैया, भैया गोली चल जाएगी। भैया नहीं। नहीं नहीं, इसका मुआवजा इसे अपनी जान दे के चुकाना ही होगा। अरे तुम्हारे चिल्लाने की वजह से मुझे बाथरूम आ गया, मैं अभी बाथरूम करके आता हूँ। दीदी,
पागल है क्या? जैसा बोलते हो वैसे करती जाओ। और वो आ रहे हैं, जल्दी बांधो मुझे वापस। ये क्या हो रहा है यहाँ पे? जाओ यहाँ से, क्या कर रहे हो यहाँ पे? जाओ जाओ जाओ। अरे भाई 1 किलो। के बस की बात नहीं है। इस औरत का कोई जोड़ीदार भी था और वो थी तुम। मुझे नहीं पता भैया, मुझे नहीं पता, मैं तो पहली बार यहाँ आई हुई हूँ, मुझे नहीं पता। अब बताओ कहाँ है मेरा एप्पल, कहाँ है? भैया सच में मुझे नहीं पता, मुझे तो त्यागी जी ने रखा है यहाँ खाना बनाने के लिए। भैया मुझे नहीं पता। तुम्हें कुछ नहीं पता? नहीं, कसम से मुझे नहीं पता। मुझे जाने दो, मुझे जाने दो, कसम से। कसम? किसकी कसम? फिर कसम खाओ। किसकी? अपने पति की कसम खाओ। भैया शादी नहीं हुई। ओ, शादी नहीं हुई तो ये मुंबई दिल्ली का हाईवे कहाँ के लिए निकल रहा है? वो तो इसलिए ताकि मेरी खूबसूरती को किसी की नजर न लगे। खूबसूरती को किसी की नजर ना लगे। अरे अरे अरे। ठीक है तो अपने बच्चों की कसम खाओ। भैया शादी नहीं हुई तो बच्चे कैसे? हम गांव में रहते हैं, ये सब नहीं चलता वहाँ पे। तो भाई बहन है तुम्हारे? हाँ, एक भाई एक बहन। ओके, तो अपने भाई बहन की कसम खाओ। उनकी कसम, मैंने कुछ नहीं किया। पूरी बात करो। मैं अपने भाई और बहन की कसम खा के कहती हूँ, मैंने आपके फल नहीं चुराए। ठीक है राजपकौड़ी। राजपकौड़ी नहीं, राजकुमारी। हाँ ठीक है वही राजकुमारी। ठीक है, मान ली तुम्हारी बात। कोई अपने भाई और बहनों की झूठी कसम क्यों खाएगा? जाओ किचन में जाके खाना बनाओ। बनाना क्या है? अरे बनाना तो फल है। अरे मैं अपना परिचय देना तो भूल ही गया। मेरा नाम है बाबू घोषा। खाने में क्या बनाना है भैया? पुलाव बना। नमस्ते भैया, स्त्री के कपड़े हैं क्या? अरे स्त्री के कपड़े बाद में, तो आओ मैं तुम्हें कहानी सुनाता हूँ। मैं रास्ते से जा रहा था, भेलपुरी खा रहा था और तभी मेरी नजर एक सब्जी मंडी पे पड़ी और मैंने देखा मजा आ रहा है। हमको भी बहुत मजा आ रहा है। सच बताएं तो हमको बीए नाटक वाटक का बहुत शौक है। हम जब स्कूल में थे तो हर साल रामलीला होता था और हर साल भाग लेते थे। अब आप सोच रहे होंगे कि हम कौन सा किरदार बनते थे। राम नहीं, रावण नहीं, सुग्रीव वो भी नहीं भाई, नल और नीर नहीं भाई नहीं, सीता। हाँ वैसे तो हम बहुत सुंदर हैं, लेकिन सीता का रोल हमारी पर्सनालिटी के साथ जचता नहीं है। हम बताते हैं हम क्या बनते थे। अशोक वाटिका में जिस पेड़ के नीचे सीता मैया बैठती थी, हम वहाँ पेड़ नहीं भाई, पेड़ भी नहीं बनते थे। उस पेड़ के आसपास वो हवा चलती थी, हम वो हवा बनते थे। हुश हुश हुश। चलिए हमारी बातें तो चलती रहेंगी। आप सब अब देखिए अपार्टमेंट नंबर 201। पिताजी, क्रोध करना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। ओ बापू, ऐना गुस्सा ना करा करो। It's 10 o'clock in the morning. Have you heard anything from that stupid Tyagi about the new cooking man? जी पिताजी, प्रतीत होता है कि नए महाराज जी भोजन का प्रबंध करने के लिए
किसी भी समय आगमन करने वाले होंगे। भोजन के वास्ते आगमन करने वाले होंगे। वो पुत्र तुसी माड़ियां गल्लां करने हो। आपां रोटी बनवानी है या फिर सुप्रीम कोर्ट के फैसले कराने हैं? Oh, be quiet, boy. I was thinking, perhaps we could go for Italian breakfast today. A tomato olive pasta, some mini frittatas, and some orange juice. ओ बापू एक मिनट फिर दसो की कहा सी तुसी? A tomato olive pasta. टमाटो टमाटो हो गया अपना टमाटर। ओलिव वो जेड़े पिज़्ज़े विच पैंदे काले काले वो पास्ता की हुंदा है यार? पिताजी, यदि आज्ञा हो तो आज के भोजन में सीताफल और लौकी का व्यंजन तथा आटे की चक्रवर्ती कोले उचित होंगे। और तुसी सारे पकाई मारे जाने हो। मैं चिकन खाना सी। नमस्ते अंकल, मैं राजकुमारी खाना बनाने आई हूँ। Good morning, my child. Are you familiar with tomato olive pasta? सुप्रभात देवी जी, आपका नाम तो राजकुमारी है, किंतु गोत्र क्या है आपका? ओ पुत्र तुसी गोत्र दा की लेना है? तुसी विआह कराना अपनी कुड़ी दा दे नाल? एवें नहीं टाइम पास कराई जाने हो। ओ बीबी सत श्री अकाल। खाने में क्या बनाऊं? As decided to this stupid conversation, we are going to have tomato olive pasta. देवी जी, सीताफल और लौकी का व्यंजन बनाइए। नहीं यार, मैं कहा सी मैं चिकन खाना है। नहीं नहीं, सीताफल और लौकी का व्यंजन खाना है। नहीं नहीं, मैं चिकन खाना है। मैं कह देता हूं नहीं नहीं खाना है। मैं चिकन खाना है। मैं कह देता मैं चिकन खाना है। मैं क्या बंद करो ये यासी का नाच। बंद करो ये यासी का नाच। सलाम अबू। सलाम भाईजान। सलाम करूंगा। तो क्या ये है वो खातून जिन्हें खाना बनाने की जिम्मेदारी से नवाजा गया है? Yes, my son. जी भ्राता से। आहो पुत्र। अफसोस, बेहद अफसोस की बात है कि आप इस मजलूम पर इस कदर जुल्म खा रहे हैं। लाहौर में लखनऊ एक ही परिवार में सारे धर्म के लोग। भाषाएं रंग रूप है जुदा जुदा, पर हमारी जुबान है जुबान केसरी। नाश्ते में खाया बनाओ, आज हम सब वही नौश फरमाएंगे। Ew! Who eats that for breakfast? Are you a donkey? गधे हो तुसी? भ्राता श्री, मैं तो शाकाहारी हूँ, कृपया मेरे लिए शाकाहारी भोजन का आज्ञा दें। भाईजान, आप ले तो हम कुछ गोश्त खाना छोड़ दें। Oh God! Enough of this stupidity. I want to be done with breakfast and go watch Sylvester Stallone on my Netflix. अब्बा जान, जिन मोहतरम साहब का आपने अभी नाम लिया है, उन्हें तो मुक्काबाजी के लिहाज से एक फिल्म भी इनायत की थी। Yes, of course. The Rocky series. Have you seen it? अफसोस अब्बा जान, वो फिल्म तो हम निगाहबान नहीं कर पाए। हमने तो मुक्काबाजी के लिहाज से सिर्फ एक ही फिल्म पर तवज्जो दिया। कहने का मतलब है कि हमने तो मुक्काबाजी के लिहाज से सिर्फ एक ही फिल्म देखी है। Which one? The Raging Bull? नहीं नहीं, अपने हूं जे तुसी गीत गाया मैं थोड़े गंडासा चक के मारना है। चल बीबी चिकन की तैयारी कर। भाईजान, ये मत भूलिए हम पठान हैं। पठान को गुस्सा आ जाए तो बाखुदा। ओ परे मर। ओ बापू मैनू रोटी दे दे, मैं मित्र दे ब्याह जाना है। चाचा जी, जिस मित्र के विवाह में आपको जाना है उस मित्र का नाम क्या है? ची। ची? ये किस प्रकार का नाम हुआ भला? ओ पुत्र आपा पंजाबी हाँ, साडे नाम ऐदा दे ही हुंदे हैं, ची, कैचा, गुगला। भाईजान, आपकी इस बात पर मुझे कुछ लफ्ज याद आ रहे हैं। इजाजत हो तो पेश करूं? ना भी हो तो मैं कहकर रहूंगा। वो कह कर गई थी एक दिन दर्द का एहसास तुम्हें भी होगा। वो कह कर गई थी एक दिन दर्द का एहसास तुम्हें भी होगा। उसकी बातें सच तब लगी जब आलू की कचौड़ी की जगह मैं दाल की कचौड़ी ले आया। लोग कर लो के लोग पांडे। पापू आपा एक काम करिए, ऐदे मंजे थले रखनी है एक डेक ते डेक ते लानी है अल्ताफ राजा दी कैसेट। बस चाचा जी, हमारी धीरज की सीमा पार हो चुकी है। आप इस प्रकार हमारे भ्राता का तिरस्कार नहीं कर सकते हैं। Stop it, all of you. This malnourished woman has been waiting for our instruction. देवी जी, आप सीताफल और लौकी का व्यंजन बनाइए। नहीं नहीं, पाया खाते हैं आज। ओ ना यार, मैं चिकन खाना सी। No,
let's have some tomato olive pasta. मैं क्या से मैं चिकन खाना है, बस मुझे पता है मुझे क्या बनाना है। Every day we have to face this problem of what's going to be the menu. बिल्कुल ठीक कहा अब्बाजान आपने। मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ कि ये सिर्फ हमारे यहाँ ही होता है। ओ यार तुसी माड़ियां गल्लां करी जाने ओले दे, मैं चिकन खाना है यार। देवी जी को रसोई घर में प्रस्थान में अत्यधिक समय हो गए, इतना विलंब। ये खा के देखो। अल्हम्दुलिल्लाह, खाना बेहद लजीज है। Excellent. This is the most delicious breakfast I've had in ages. देवी जी, ये व्यंजन तो वास्तव में स्वादिष्ट है। नाम क्या है उसका देवी? खिचड़ी। भैया आप नहीं खा रहे? ओ ना यार, मैं चिकन खाना सी। सॉरी, ये प्ले हमें बीच में रोकना होगा। पार्किंग में थोड़ा इश्यू हो गया है। कुछ लोग गाड़ी का शीशा तोड़ रहे हैं, प्लीज़ एक बार आप जाकर देख लीजिए। पुलिस आई हुई है, HR 26 CS 7155। प्लीज़ एक बार देख लीजिए आप। आपकी गाड़ी बिल्कुल सुरक्षित है, बैठ जाइए आप। चलिए इसी बात पे देखते हैं अपार्टमेंट नंबर 301। भैया आप नहीं खा रहे? नमस्ते दीदी। नमस्ते। कौन है वहाँ पे? कहाँ पे दीदी? कौन है यहाँ पे? उफ, सोते सोते सेंस ऑफ डायरेक्शन धुंधला हो जाता है। हाँ, मैं तो सोते सोते हर डायरेक्शन में लात चलाती हूँ। मेरे सोने में और तुम्हारे सोने में फर्क है। एनीवे, कौन हो तुम और मुझसे अपना सोना क्यों डिस्कस कर रही हो? मैं राजकुमारी खाना बनाने आई हूँ। अब काहे का खाना? खाना तो मैंने 13 दिन पहले ही खाया था। बटर चिकन, चावल, नान। अरे दीदी, इतना खाना वैसे तो मैं सिर्फ अपने लिए ही बनाती हूँ, पर आपके लिए भी बना दूंगी। रोइए मत। नहीं, मैं आज के बाद खाना नहीं खा सकती। क्यों दीदी, कब्जी है? पगली, मैं मर चुकी हूँ। हाय दीदी, जिंदगी में परेशानियां तो आती रहती हैं, ऐसे तो मत बोलो। मरे आपके दुश्मन। राजकुमारी, मैं सच में भूत हूँ। और मैं आग, राम गोपाल वर्मा की आग। उफ, अब मैं बोर हो गई हूँ इस म्यूजिक से। खाने में क्या बनाना है? अरे मैं तो सिर्फ फुटेज खाती हूँ आजकल। हाँ, तुम भैया के लिए खाना बना सकती हो। मैं चाहकर भी तुम्हें पकड़ नहीं सकती। पिक्चरें नहीं देखती क्या? मैं सिर्फ सबके आर पार जाती हूँ, कुछ पकड़ में नहीं आता। अच्छा, देखे तो। बदतमीज, मैं तेरे आर पार जा सकती हूँ, तू नहीं। वैसे एक भूत के लिए ये 2 BHK बड़ा नहीं है। आप तो चिमनी में भी रह सकती हो। बकवास मत कर। मंजुली का याद है ना, फुल भुलैया वाली? वो जिम फ्रेंड है मेरी, कटवा दूंगी उससे। और खाने की तैयारी मेरे हस्बैंड के लिए करी, वो आने वाले हैं। इन 5, 4, 3, 2, 1।
ऊंची है बिल्डिंग कैसे मैं आऊं दिल रज़ामंद है। नमस्ते भैया। आ मिल जा फिर गले हंसते हंसते सलाम नमस्ते सलाम नमस्ते। भैया मैं राजकुमारी। ये तो बताओ कि तुम मेरे कौन हो। मैं खाना बनाने वाली हूँ जिसका मुझे था इंतजार, जिसके लिए दिल था बेकरार। दीदी भैया हर बात गाने में कहते हैं क्या? ऑफ कोर्स नॉट राजकुमारी, वो बहुत बेकार रहते थे, टीवी पर ही सवार रहते थे। मेरी मौत के बाद खुद टीवी बन गए हैं, 2 गानों के बाद 2 मिनट की ऐड चलाते रहते हैं। ये भूत है और ये टीवी। सुन रहा है ना तू, रो रही हूँ मैं। ओहो भगवान को क्यों डिस्टर्ब कर रही हो? ये सब भूल जाओ। तुम्हें पता है आज कितना स्पेशल दिन है मेरा? आज मेरी 13वीं है। मानो कल की ही बात हो, सफाक सफेद चादर में लाए थे मुझे। दीदी आपके जाने के बाद भैया को तो बहुत दिक्कत हुई होगी। हाँ, इसका जवाब भैया ही देंगे। असली जिम्मेदारी तो उन्होंने अपनी जिंदगी में ही निभा दी थी, जीवन बीमा पॉलिसी लेकर। उनकी कमी तो हमेशा रहेगी, मगर LIC ने हमें बड़ा सहारा दिया। बच्चों की पढ़ाई, बेटी की शादी और घर के खर्च बीमे के रकम से पूरे हुए, वरना पता नहीं क्या हाल होता। मैं तो कहती हूँ जिंदगी में हम सभी को जीवन बीमा कराना चाहिए। वैसे भैया आप दूसरी शादी क्यों नहीं कर लेते? हम एक बार जीते हैं, एक बार मरते हैं, शादी भी एक बार होती है और प्यार भी एक बार होता है। अरे इसी शादी 2 बूंद जिंदगी के 5 साल के बच्चों को जरूर पिलाएं। भैया खाने में क्या बनाऊं? 1 प्याली चाय पिला दो, टुडे प्रीमियम चाय। ठीक है, चाय बिस्कुट खाना आज न छोड़ूंगा तुझे दम दमादम, तूने क्या समझा है मुझे दम दमादम। Dog. Who lets the dog out? Who? हम भी हैं जोश में, बातें कर होश में, यूं ना आंखें दिखा। बुलंद भारत की बुलंद तस्वीर, हमारा बजाज, हमारा बजाज। मिले सुर मेरा तुम्हारा, तो सुर बने हमारा। ओए मिलाऊं सुर में तुम्हारे, मर गई हूँ अभी दफा नहीं हुई हूँ। मिले सुर मेरा तुम्हारा, रात रात को कंबल खींचूंगी आप ऐसे दोनों के। जो बीवी से करे प्यार, वो प्रेस्टीज से कैसे करे इनकार। मेरा नाम है कैलेंडर, मैं तो चली किचन के अंदर, खाने में क्या बनाना है बता दो। वैसे भूत बनने के अपने एडवांटेजेस हैं। सबकी प्राइवेसी की ऐसी की तैसी कर सकती हूँ, किसी को भी कभी भी देख सकती हूँ और सबका सिर दर्द भी कर सकती हूँ। सिर्फ एक सैरिडॉन और सर दर्द से आराम, ना रहे पीड़ा ना रहे दर्द, सिर्फ एक सैरिडॉन। ओहो प्लीज स्टॉप बीइंग ओवर ड्रामेटिक। तू भी ड्रामे बाज, मैं भी ड्रामे बाज। चलो आज कुछ तूफान ही करते हैं। स्प्राइट सिर्फ बुझाए प्यास, बाकी सब बकवास। ये तो पूरे दिन चलता रहेगा। रिंकू कहाँ है? उसे मैंने फूल लाने को कहा था अपनी फोटो के लिए। आजा शाम होने आई, मौसम ने ली अंगड़ाई, फिर किस बात की लड़ाई। तू चल मैं आई, तू चल मैं आई। अरे खाना तो बता दो। चलिए आप सबको एक किस्सा सुनाते हैं। एक बाप के 3 बेटे थे और मरते समय उसने अपने बड़े बेटे को कहा, गोल्फ कोर्स के सारे घर तुम्हारे। मंजिले बेटे से कहा, DLF के जितने भी घर हैं वो सब तुम्हारे। सबसे छोटे बेटे से कहा, सेक्टर 86 से लेके सेक्टर 90 के घर सारे तुम्हारे। और अपनी पत्नी से कहा कि साइबर सिटी के आसपास वाले सारे घर तुम्हारे। अब आप सोच रहे होंगे कि यह व्यक्ति कितना अमीर है
अपने परिवार के लिए इतने घर छोड़ के जा रहा है ना? अरे नहीं, वो तो अखबार बेचने वाला था, अपने परिवार में एरिया बांट रहा था। अरे क्या ही बात है भाई, एरिया बांट रहा था। हमने कहा था ना, हम बहुत मजाकिया व्यक्ति हैं। चलिए अब दिखाते हैं अपार्टमेंट नंबर 401।